یہ لڑکی کرسچن ہے اور چرچ گئی اور کرسچن اسکول میں پڑھی، لیکن اس نے کبھی بیپٹائز نہیں کیا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں میں بتا دوں کہ بیپٹائز کا مطلب ہوتا ہے کہ کرسچنز کا ریچول ہے، پرمپرا ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے 3 بار اس طرح ڈبوتے ہیں۔ تو اس لڑکی کا بیپٹائز بھی نہیں ہوا، اور انہی سب وجہوں سے یہ لڑکی کافی زیادہ کنفیوزڈ ہے اپنے ریلیجن کو لے کے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ لڑکی مسلمان ہوئی کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ یو آر واچنگ الفیہ امین۔ اس کا کنیکشن کبھی بھی نہیں بن پایا کرسچینٹی سے۔ اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ جیزس گاڈ ہے، اور نہ ہی کبھی اس کو یہ سکھایا گیا کہ جیزس گاڈ ہے۔ کرسچینٹی کیا ہے، کرسچن لوگوں کے لیے ریچولز کی کیا اہمیت ہے، یہ سب کچھ اس کو اس کے بڑوں نے کبھی بھی نہیں سکھایا نہ بتایا۔ جب وہ محض صرف 10 سال کی تھی تو اس کو بس یہ بتایا گیا کہ ہم سب جیزس کو مانتے ہیں اور تمہیں بھی جیزس کو ماننا ہوگا۔ جیزس ہی گاڈ ہے۔ کئی لوگ جیزس کو ہی گاڈ مانتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں ایک 10 سال کی بچی کے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ وہ کافی زیادہ کنفیوزڈ ہو گئی اور دن بدن اسی کشمکش میں رہی۔ اس کی کرسچینٹی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا یہ سمجھنے میں کہ کیسے جیزس گاڈ ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ کیوں ہے وہ گاڈ، لیکن کسی نے بھی مجھے کوئی مکمل اور مطمئن جواب نہیں دیا۔ اور یہ سب دیکھ کے میرا جو کنفیوژن تھا وہ اور زیادہ پکا ہوتا چلا گیا۔ یہی ایک سب سے بڑی وجہ بنی کہ میں کرسچینٹی سے دور ہوتی چلی گئی۔ کرسچینٹی کا انوائرمنٹ میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے مزہ نہیں آتا تھا، نہ ہی مجھے سمجھ آتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آخر کیوں کر رہے ہیں۔ انہی سب کے ساتھ ساتھ میرا بھروسہ کافی جلدی اٹھ گیا اس ریلیجن سے، اور میں دوسرے ریلیجن کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو تب میں پوری طرح مکمل طور سے کرسچینٹی کو ماننا چھوڑ چکی تھی۔ میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی اور میں غلط راستے پر نکل پڑی۔ مجھے جو ٹھیک لگتا تھا وہ میں کرتی تھی، مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ میں کرتی تھی، بغیر یہ جانے اور سمجھے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ میں زیادہ اور گہرائی میں نہیں جاؤں گی، میں بس اتنا کہوں گی کہ میرا دل پوری طرح نفرت سے بھر گیا تھا، اور مجھے ہر ایک چیز سے، ہر شخص سے نفرت ہوتی گئی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ جو دل کیا وہ میں کرتی چلی گئی۔ صاف سمپل الفاظوں میں کہا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ میں ایک اچھا انسان نہیں تھی۔ جب میں 19 سال کی ہوئی تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ڈرگز کیا کرتا تھا۔ سوچ کے دیکھیے کہ آلریڈی میں کافی اسٹرگل کر رہی تھی، آلریڈی میری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی، اور پھر اوپر سے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو، وہ بھی اس طرح ڈرگز لے کر۔ میرے ذہن پر کیا بیتی ہوگی یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی اپنے بھائی کی موت کے بعد۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرا گاڈ پر سے یقین نہیں ہٹا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ گاڈ ہے کون، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ تھا، احساس تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے گاڈ۔ اب صرف پتہ لگانا باقی تھا کہ ہے کون گاڈ۔ یہ سب دیکھتے اور سمجھتے ہوئے مجھے ایک خوف سا آنے لگا، اور وہ خوف یہ تھا کہ آخرت میں کیا حال ہوگا میرے بھائی کا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جس سے میں اور زیادہ ڈرنے لگ گئی، اور اسی وجہ سے میں نے دوبارہ گاڈ کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر گاڈ ہے کون۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے گاڈ کو ڈھونڈ لیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بچا سکوں، اور اسی وجہ سے دوبارہ کرسچینٹی میں آ گئی اور خدا کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ میں پروفٹس پر تو یقین کرتی ہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسلام میں بھی پروفٹس ہیں۔ ایک دن میں ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی اور وہاں سے مجھے یہ معلوم چلا کہ اسلام میں بھی پروفٹس ہیں، اور پھر میں نے ریسرچ کرنی سٹارٹ کر دی اسلام پر۔ اور جیسے جیسے میں نے اسلام کو پڑھا اور جانا، مجھے یہ سمجھ آیا کہ میرے خیالات تو کافی زیادہ ملتے ہیں اسلام سے، میرا جو یقین ہے وہ کافی زیادہ ملتا ہے اسلام سے، اور یہی ایک وجہ بنی جس سے میری شروعات ہوئی کہ میں کنورٹ ہوں اسلام میں۔ لیکن ابھی بھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں انتظار کروں گی، ریسرچ کروں گی، جب تک میں 100% شیور نہ ہو جاؤں کہ اسلام ہی سچائی ہے اور اللہ ہی ہے صرف۔
जब तक मेरी रिसर्च मुकम्मल नहीं हो जाएगी तब तक मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूँगी। मैंने कई सालों तक रिसर्च करी और मेरा दिल मुतमईन हो गया एक दिन कि इस्लाम ही सच्चाई है, अल्लाह ही है जो दुनिया को चला रहा है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया को चलाने वाला। पिछले साल 2023 में रमज़ान में मैंने इस्लाम को कबूल किया और मैं मुसलमान हुई, और इस्लाम कबूल करते ही मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बदलाव आया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ज़हनी तौर से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी जब मैं क्रिश्चियनिटी में थी, और जब मैं इस्लाम में दाखिल हुई तो मैं धीरे धीरे ये जानने लगी और समझने लगी कि जो कुछ मेरे साथ पास्ट में हुआ वो सब एक टेस्ट का हिस्सा था, और शायद मैं पास हो गई हूँ क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेरा जहन है, वो ठीक होने लग गया था इस्लाम को कबूल करने के बाद। और मुझे ये समझ आया कि अल्लाह की मदद से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शायद आप भी मेरी बात से रिलेट कर पाएँ कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक सुकून ज़रूर मिलता है। और अगर दिल से आप अल्लाह को मानो और इस्लाम को कबूल करो तो ज़िंदगी में बहुत सुकून रहता है। आपको क्या लगता है, इस्लाम में सुकून है या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये सुकून अल्फाजों में बयान करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सिंपली मैं कहूँ तो ऐसा लगता है कि सांस लेना अब आसान हो गया है। मैं इस्लाम को 100% कबूल कर चुकी हूँ, और इस्लाम को कबूल करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो कुछ मैं अब तक करती आ रही थी वो हराम था। ये काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए हराम चीज़ों को छोड़ना और उनको ठीक करना। धीरे धीरे मैंने हराम चीज़ों को छोड़ना शुरू किया, और जब मैं पूरी तरह हलाल पर आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हसीन है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर शराब काफ़ी ज़्यादा आम है, और ऐसी सोसाइटी से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि सब लोग शराब पी रहे हैं और मैं नहीं पी रही थी, तो उनके मुकाबले मैं बहुत ही सिंपल और बोरिंग हो गई थी। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, जब तक मैं इस्लाम पर हूँ और अल्लाह को राज़ी कर रही हूँ। क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं हूँ वहाँ पे शराब पीने को मज़े करना समझा जाता है। मुझे लगता है कि अब मैं सही डायरेक्शन में हूँ, अब मैं सही काम कर रही हूँ जब से मैंने इस्लाम को कबूल किया है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह जो भी आपसे कुछ लेता है या फिर किसी भी तरह की आजमाइश में आपको डालता है, ये बात आप समझ लीजिए कि बदले में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, या तो दुनिया में या फिर आखिरत में। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह मैं आई इस्लाम में, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग था अपने घर में बताना, क्योंकि मेरे फादर जो वालिद थे वो एथीस्ट थे। वो किसी भी गॉड को नहीं मानते थे, उनका यकीन किसी भी खुदा पर नहीं था। और जो मेरी माँ थी वो क्रिश्चियन थी। हालांकि मेरे वालिद किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी कि हम अपना रिलीजन खुद से चूज़ करें, पढ़ें, समझें और अपना यकीन किसी भी खुदा पर रखें। यानी जो भी हम चाहते हैं या जिस भी रिलीजन को हम अपनाना चाहते हैं हम अपना सकते हैं। ये आज़ादी मुझे मेरे वालिद ने दी। अब ये सब कुछ जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मेरा इस्लाम को कबूल करने से मेरे वालिद को तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रहती हूँ कनाडा में और इस्लाम यहाँ पर टैबू समझा जाता है। जैसे ही मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं इस्लाम में दाखिल हो रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। मैंने कहा कोई भी रिलीजन ले लो लेकिन इस्लाम नहीं, क्योंकि ये टैबू समझा जाता है। लेकिन ये बात मुझे उन्हें बतानी ही पड़ी। मैं ये बात छुपा नहीं सकी क्योंकि मुझे हिजाब भी पहनना था। ये सब जानने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे एक सवाल किया कि क्यों मैं इस्लाम को कबूल करके मुसीबत में पड़ रही हूँ। और सिर्फ यही एक सवाल नहीं बल्कि हजारों सवाल मेरे सामने रख दिए उन्होंने। लेकिन मैं भी नहीं घबराई और मैंने भी तसल्ली से उनके सारे सवालों के जवाब दिए कि आखिर इस्लाम ही क्यों चुना मैंने। और मेरी मदर कन्विंस्ड हो गई, वो समझने लगी कि इस्लाम में ही फ़ायदा है। और मेरे वालिद ने थोड़ा लंबा वक्त लिया समझने में, लेकिन वो भी कुछ वक्त के बाद समझ गए। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल है इस्लाम का। मैंने इस्लाम को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और जिस तरह मेरा रहन सहन था और जिस भी तरह मैं जी रही थी वो ढंग मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मेरे माँ बाप को, और यही सब कुछ देखकर वो पिघल गए।
और कन्विंस हो गए। बेशक इस्लाम है ही इतना खूबसूरत कि कोई भी उसको फॉलो करे तो देखने वाले को इस्लाम पसंद आएगा ही, क्योंकि इस्लाम के रूल्स, इस्लाम के तौर तरीके जो भी हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और फ़ायदेमंद हैं इंसान के लिए। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता था मॉडेस्ट फैशन, हिजाब। इस्लाम में जिस तरह औरतों को पहन ओढ़ के रखने के लिए कहा है, मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया। हालांकि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं ये सोच चुकी थी अगर मैं इस्लाम को कबूल नहीं भी करती तब भी मैं मॉडेस्ट कपड़े ही पहनूंगी और हिजाब पहनूंगी, क्योंकि ये तरीका मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हिजाब करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि हिजाब पहनना भी एक टेस्ट ही है। हिजाब पहनना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने अपने आप को वक्त दिया, हिजाब को पहनने की प्रैक्टिस करी, घर पर पहनती थी और फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और अब मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं हिजाब को पहनती हूँ। मुझे ये पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप इस्लाम की किसी भी बात पर अमल करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी की बात को मत सुनिएगा। अपने आप को वक्त दीजिए और अल्लाह की बात को तवज्जो दीजिए। धीरे धीरे आप अमल भी करने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या आपके साथ कभी कोई मुश्किल आई है किसी भी बात को लेकर, यानी अमल करने को लेकर? मेरे साथ आई थी जब मैं हिजाब कर रही थी। अगर आपके साथ भी आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुश्किलें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। खुशी की बात तो ये है कि मैंने अपनी जवानी में ही इस बात को समझ लिया और इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन कई लोगों को तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है ये समझने के लिए कि इस्लाम है क्या और क्या है खूबसूरती इस्लाम की। ऐसे ही कुछ हुआ है इन सरदार जी के साथ, जो कि हैं 105 साल की उम्र के, जो कि करीब हैं बेहद मौत के। लेकिन क्या ये इस्लाम कबूल कर पाएंगे इस उम्र में? और ऐसा क्या किया इन्होंने कि सब चौंक गए? जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।